Good morning, students. How are you all? I hope that you have seen the previous videos. Students, if you have not seen the previous videos, then the next video you are not able to understood. Okay, because one topic is linked with the other topics. So, what you have to do, first watch my previous videos and then you listen the next one. There is different part 1, part 2, part 3. Okay, if you will watch part sixth later and past sixth first and later you will see the part 1, then the chapter will not be able to understood. Okay, so what you have to do, uh, watch it sequentially. Now first we will start we have completed the harmful and useful effect of bacteria. Now we will see food poisoning. Students, you have seen food poisoning. Okay, food poisoning से पहले मैं आपको बताती हूँ that this when the food is left bad when your parents brought fruits. Okay, fruits लेके आते हैं स्टूडेंट्स, वेजिटेबल्स, ओके, ब्रेड्स, all these things. Okay, then what will happen when you will not eat for 2, 3, 4 days? Then after you will see the color of the food, color, taste, स्मेल, उसके अंदर से जो स्मेल आ रही थी, ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं ODOUR. ओके, ऑर्डर मीन्स स्मेल. This is change. Why this is the color of the fruit, its taste also change after some time, and some bad smells coming from it. What will happen? Actually what happened that this is food is spoiled. इसका मतलब क्या हो गया? Food spoiled हो गया. Spoiled means वो food या fruits या vegetables, breads जो हमने बाहर रखे हुए थे वो क्या हो चुके हैं? स्पॉइल्ड हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं. देन हाउ यू विल सी, हाउ you identify that the food is spoiled? Because of the taste. बिकॉज ऑफ द टेस्ट. टेस्ट क्या हो गया उसका? आप अगर एक बाइट लेते हो तो टेस्ट चेंज. कलर ऑल्सो यू विल सी द कलर ऑफ द दिस फ्रूट इज ऑल्सो चेंज. कलर समटाइम यू विल सी पैचेस ऑन द फ्रूट्स. फ्रूट के ऊपर से धब्बे से दिखने को मिलेंगे आपको आफ्टर 4-5 days. ओके, देन माइंड में आता है कि ये सब चीज़ क्यों हुआ? फ्रूट्स के ऊपर कलर चेंज हो रहा है, उसका टेस्ट चेंज लग रहा है, उसमें से स्मेल आ रही है. वाई? दिस इज़ बिकॉज सी some microorganisms start growing on that food items. On food items पे some microorganisms grow, mostly this bacteria, fungi, they will grow. And suppose this is a food item, okay, then this bacteria, you can say bacteria also spoil the food, or you can say fungus. Okay, देन व्हाट दे विल डू, दे स्टार्ट ग्रोइंग. वो क्या करेगी वहाँ पे फूड के ऊपर? ग्रो. एंड देन दे विल प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. वो क्या प्रोड्यूस करेगी स्टूडेंट्स? टॉक्सिक सब्सटेंस. टॉक्सिक सब्सटेंस जब प्रोड्यूस करेगी, देन व्हाट हैपन, दिस टॉक्सिक सब्सटेंस मेक द फूड पॉइजनस. टॉक्सिक सब्सटेंस जो ऐड होगा इससे फूड क्या हो जाएगा? पॉइजनस. टॉक्सिक सब्सटेंस से फूड क्या हो जाएगा? पॉइजनस हो जाएगा. एंड दिस मेक द फूड ड्यू टू द टॉक्सिक सब्सटेंस दे विल प्रोड्यूस. कौन प्रोड्यूस करे टॉक्सिक सब्सटेंस? लाइक बैक्टीरिया, फंजी मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड दिस टॉक्सिक सब्सटेंस when this is eaten by us, when this toxic substance, when we eat that food, the toxic substance also enter in our body. It will also enter in our body. Now this toxic substance also enter in our body. Then what happens students? This toxic substance enter in our body and we feel like serious illness. हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? इलनेस. इलनेस मतलब जैसे आप ये कह सकते हो कि समथिंग आपको वॉमिटिंग आएगी, वॉमिटिंग, और यू कैन से स्टमक एक, मतलब पेट में दर्द होगा. ओके, स्टमक एक. देन सम इलनेस विल बी सीन. दिस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग. उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? फूड पॉइजनिंग. नाउ अंडरस्टूड? मीन्स अगर मैं आपको शॉर्ट में भी बताऊं तो जैसे ही 4-5 days में वेजिटेबल्स फ्रूट्स पड़े होंगे, देयर कलर चेंज, देयर टेस्ट चेंज,
and some smell is also started coming. Why? Because of the growth of the bacteria on it. And this bacteria produce, क्या प्रोड्यूस करेंगे बैक्टीरिया? पॉइजनस सब्सटेंस. पॉइजनस सब्सटेंस से क्या होगा? फूड क्या हो जाएगा? वो टॉक्सिक हो जाएगा. ओके, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा तो फूड क्या हो जाएगा? टॉक्सिक. और ये आप कह सकते हो these make the food poisonous. Or if we will consume such type of food, then there will be serious illness in our body. Okay, this is called food poisoning. Understood? Now you will see, this is, now you understood this topic now, students, being spoiled. Okay, next we will see food preservation. See, when in the summer we will keep the food items in freezer also, you will see freezer also, in refrigerator also. Okay, then you know that the food granaries, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो ये फूड फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, फूड को हम प्रिजर्व करते हैं, जैसे फूड आइटम्स लाइक सीरियल्स, ग्रेन्स, इनको हम क्या करते हैं? धूप में सुखा के फिर इनको स्टोर हाउसेस में हम पहुंचाते हैं. तो फूड को, इसको क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेशन. फूड को प्रिजर्व करना जरूरी है, बिकॉज वी कैन ईट द कुक्ड फूड और एनी फूड आइटम, आइदर इट इज़ कुक्ड और नॉट कुक्ड. ठीक है, वो इट विल स्टार्ट स्पॉइलिंग आफ्टर सम टाइम. देन here, then because of the growth of the microorganism, then you will say what are the methods we will use that this spoiling of the food will not take place. जैसे यहाँ पे पहेली, what the paheli is saying, that when the spoiled mango's grandmother, the color of the mango rotten, the color of the mango changed because of the rotten smell is coming out of it when the mangoes are brought by our parents, you say. So after few days after that you'll say it are rotten. But when the mango pickles, when the mango pickles he has seen, the she have seen, then the mango pickles will not be rotten after many month also. कई महीनों तक वो खराब नहीं होगा आम का अचार. Why? Is there any something change? Let's we will see this one. Now this paheli is in confused that why this mango pickle is not this mango pickle is not in a you will say that not spoiled by the microorganisms. Why? And but this mangoes are spoiled by the mango pickle is not spoiled. This is because we use some methods to preserve the food items. First we will see the chemical method. First is the student chemical method you will see. Now first is the chemical method. Now first we will see salt. Salt and edible oils are commonly chemicals. Salt is actually made up of sodium chloride. Formula is NaCl. The salt which we are using at home, that is sodium chloride. Understood? So some salts, some edible oils are commonly we are used as a chemical methods. When we add this salt and oils, like in a pickle also you can say, then when we add all these things and check the growth of microorganisms, और microorganisms की growth को हम side by side check करते थे, this they are called preservatives. What we call them? Preservatives. Now what are the preservative? There are some salts and acid preserved pickles. कुछ हम acids भी डालते हैं, like you can say vinegar. Like vinegar is a acid, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट सिरका. ओके, एस्टिक एसिड इसका दूसरा केमिकल नेम है. सो सिरका और विनेगर हम लोग डालते हैं इन द पिकल. नाउ देर आर सम other preservatives also which we used in jam, squash, all this one, so that it will not be spoiled. So what are the others? You see sodium benzoate, sodium meta bisulfate. ये क्या है कुछ? What is sodium benzoate and sodium meta bisulfate? ये क्या स्टूडेंट्स? कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है जिसको हम यूज़ करते हैं जैम्स में, स्क्वैशेस में, तो सो दैट दे विल नॉट बी एनी स्पॉइलेज. जैम देखा आपने? जैम की बोतल आप यूज़ करते हो, सो 3 month 4 month 5 month तक it will nothing will be spoiled and it is look as fresh as we brought on the first day. Okay, now see, this is one method.
that is chemical method. See the next method, preservation by common salt. Say when common salt has been used as preservative, जैसे मीट फिश, ताकि काफ़ी टाइम तक उन फिशेस को हम रख सकते हैं, if you will use, then what happen, this meat and fish are covered with dry salt. इसको किससे कवर करके रखते हैं मीट और फिश को? ड्राई सॉल्ट से. सो दैट देयर विल नॉट बी एनी ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, ताकि बैक्टीरिया में कोई भी ग्रोथ ना हो. देन सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला. सॉल्ट हम और कहाँ डालते हैं स्टूडेंट्स? आंवला का आपने देखा होगा, आंवला, रा मैंगोज, टैमरिंड. हेयर ऑल्सो वी विल यूज, व्हाट विल यूज? कॉमन सॉल्ट. सो कॉमन सॉल्ट आपने देखा होगा, नमक हर जगह डाला जाता है. दिस इज बिकॉज दिस इज नॉट ओनली फॉर टेस्ट, one is the fast cooking also. Common salt help in fast cooking also. Second, common salt help in preserving the food item. It will preserve for long time. Third, you will see how we will preserve. Third is preservation by sugar. See students, when we add sugars, कई में आपने देखा होगा शुगर ऐड करते हैं. ओके, नाउ व्हाई वी ऐड शुगर? बिकॉज जो शुगर है वो क्या करेगी? रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट. क्या रिड्यूस कर देगी? वहाँ पे मॉइस्चर की मात्रा को रिड्यूस कर देगी. और इफ़ मॉइस्चर इज नॉट प्रेजेंट, देन व्हाट हैपन? द बैक्टीरिया विल नॉट ग्रो. बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो ही नहीं होंगे एंड द फूड विल नॉट स्पॉइल. अंडरस्टूड? सो व्हाट द शुगर डू? शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट. वहाँ पे जितना भी मॉइस्चर होगा, जिस चीज़ के अंदर आपने शुगर ऐड कर दिया है, शुगर एब्जॉर्ब द मॉइस्चर एंड द बैक्टीरिया विल नॉट ग्रो देयर. नाउ यू विल सी इन सम प्लेसेस oil and vinegar is also added, like in the pickles also. In fruits, vegetables, fish, meat are often preserved by this method. See, oil and vinegar preserve spoilage of pickles. ऑयल एंड जो विनीगर है वो हम डालते हैं, क्यों? ताकि फूड स्पॉइलेज ना हो. ना वाई दिस, हाउ दे आर हेल्पिंग? बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट में. ऐसे टाइप के इन्वायरमेंट है, इफ़ यू विल यूज ऑयल एंड इफ विनेगर इज देयर, सो दैट इज नॉट ए एप्रोप्रिएट प्लेस. एप्रोप्रिएट मीन्स करेक्ट प्लेस. ओके, दैट इज नॉट द करेक्ट प्लेस where bacteria grow, where bacteria grow. Okay, जहाँ पे वहाँ पे बैक्टीरिया, दिस इज बिकॉज वहाँ पे इन्वायरमेंट ही नहीं है. बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करते ज़्यादा? इफ़ देर इज़ मॉइस्चर, ओके, इफ़ देर इज़ हाई ह्यूमिडिटी, ओके, इफ़ देर इज़ डार्क एरिया, ओके, डार्क एरिया वेयर सनलाइट विल नॉट रीच, means where temperature is less, that places microorganisms grow well. Okay, now we'll see the next one. See, next is heat and cold treatment. Understood? Heat and cold treatment. You will say that your mother say boiling milk. If you will during summer season, not in winter season, summer season mostly what happen, when we will not boil milk, then what happen, if you will not boil milk, after some time the taste of milk change. कैसा हो जाएगा मिल्क? सोर, खट्टा हो जाएगा. देन व्हाट वी विल डू? वी विल हीट इट. जब उसको हम हीट कर देंगे, देन व्हाट विल हैपन, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट्स, बिकॉज ऑफ द हाई हीट they are not in active state, and we will use that milk for 1 and 2 days without any spoilage. So boiling kills many microorganisms. Understood? Next we will see the next one, this pasteurization process. See, what is pasteurization? Pasteurization process is very very important, and pasteurization milk can be consumed. How? कैसे ये पैस्चराइजेशन प्रोसेस देखते हैं. लेट्स वी विल सी. नाउ दिस पैस्चराइजेशन, सी, दिस पैस्चराइजेशन वाज इन्वेंटेड, हु हैव गिवन दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय लुईस पास्चर. हु इन्वेंटेड दिस मेथड? लुईस पास्चर. ओके, नाउ लुईस पास्चर ने दिस मेथड इन्वेंट.
Now what is it this method? Say that pasteurized milk can be consumed without boiling. We no need to boil this milk. So pasteurized milk can be consumed. You can consume after 2 months, 3 months, 4 months. It will not any spoil, and it will free from harmful microbes. It is free from harmful microbes. Now how this pasteurization method take place? First what we will do, students, the milk is heated to about 70 degrees Celsius. First we will heat the milk at the temperature of 70 degree Celsius. Then for 15 seconds, okay, 15 to 30 seconds, we will heat the milk at 70 degrees Celsius. Then suddenly what we will do, suddenly इसको cool कर देंगे, ठंडा कर देंगे बिल्कुल, and stored. Now in this way there is not any effect in the flavor. उसके फ्लेवर में, टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा. मिल्क जैसा एक्चुअल जैसे ताज़ा दूध आपको नज़र आता है वैसे ही बिल्कुल इसका टेस्ट लगेगा. ओके, सो वह इसमें सडनली वी विल एट 70 डिग्री सेल्सियस वी विल हीट करते हैं फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली कूल कर देते हैं. दिस इज़ नोन एज पैस्चराइजेशन मेथड. नाउ आफ्टर दिस see you one is next here, storage and packing. What is storage and packing? Storage and packing is, students, what happen when the this farmers fruits, even vegetables are sold in sealed airtight container. What we will do these days, fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packed. Why? So that it prevent the attack of microbes. Packed, इसको क्या कर देते हैं, सील करके एयर टाइट. If like I will give you one example, like this is the packet of chips. Okay, this is the packet of chips. Now in this chips what will happen, we fill नाइट्रोजन गैस. इसमें कौन सी गैस फिल कर देते हैं स्टूडेंट्स? चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस. सो दैट इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इनसाइड दैट फूड आइटम्स, देन द ऑयल एंड फैट, जो चिप्स के ऊपर जो ऑयल और फैट है वो किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से, और वो उस फूड को क्या कर देगा? स्पॉयल. सो व्हाट दे विल फिल नाइट्रोजन गैस in the packets of chips, so that this nitrogen will not react and the food item is not spoiled for a long time. So and it is sealed properly so that anything will not enter in this one, only this gas is present and it will not react with that food item. इसी तरीके से ग्रेन्स, लाइक आपने देखा होगा वीट जो खेत से किसान निकालते हैं, दिस वीट आर स्टोर बिफोर स्टोरिंग इन ए ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं. फर्स्ट व्हाट वी विल डू, ड्राई, उसको सुखा लेते हैं. जब उसको सुखा देंगे देन व्हाट हैपन, मॉइस्चर इज़ नॉट प्रेजेंट, मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट नहीं होगा. अगर मॉइस्चर ड्राई कर लेंगे तो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा एंड देन इट विल स्टोर फॉर ए लॉन्ग टाइम in the granaries. Understood? Let's we will see the next topic, nitrogen fixation. Now nitrogen fixation क्या होता है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन को फिक्स करना. ओके, यू विल सी नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में कितनी नाइट्रोजन है? यू विल से 78% नाइट्रोजन है. देन ऑल्सो दिस 78% नाइट्रोजन है, फिर भी प्लांट्स उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते बिकॉज they are not able to directly absorb by the soil this nitrogen. So in some plants, कुछ plants होते हैं जिसको हम बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट्स. लेगुमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जिन पौधों में फलियां लगती है, लाइक पीस, बीन्स, ओके, जिसको आप मस्टर्ड, सरसों के खेत में. ओके, तो ये लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं. इन लेगुमिनस प्लांट्स के रूट में क्या होता है? सपोज दिस इज ए लेगुमिनस प्लांट्स, इनकी रूट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? नोड्यूल्स. ओके, क्या बोलते हैं इसको हम? नोड्यूल्स. नोड्यूल्स यानी गांठें होती है. ओके, और वहाँ पे कौन से बैक्टीरिया होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया. ओके, दिस राइजोबियम बैक्टीरिया व्हाट इट विल डू, दिस जो इन्वायरमेंट में जो फ्री नाइट्रोजन गैस है, दिस नाइट्रोजन गैस दिस राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रेट्स. किस में कन्वर्ट कर देंगे इस नाइट्रोजन गैस को? नाइट्रेट्स. एंड दिस नाइट्रेट्स इज इजीली सॉल्युबल बाय एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स.
ये इजीली इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल, बायो मीन्स व्हाट स्टूडेंट? लिविंग। सो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमने नाइट्रोजन, इन्वायरमेंट के जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके एंड इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। बट वन इज natural, that is through lightning also. So some fixation also take place through lightning. Okay, now lightning, this is what we call this lightning students. Actually this is called atmospheric nitrogen fixation. क्या होता है इसको हम बोलते हैं atmospheric. What we call it? Atmospheric. Atmospheric नाइट्रोजन, मैं नाइट्रोजन को खाली इतना एन लिख रही हूँ, ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन, चलो लिख देती हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा? व्हेन लाइटनिंग होगी, ये लाइटनिंग तो आप समझते हो, जो बिजली कड़कती है, ओके। देन लाइटनिंग होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? हाई। एंड हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? व्हाट हैपन? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होगा? रिएक्ट, और क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड अगेन रिएक्ट करके ऑक्सीजन से नाइट्रोजन क्या बना लेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स बना लेंगे। पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, जब लाइटनिंग होगी, हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे, देन रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाएंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड अगेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स बनाएंगे। NO2, N इज नाइट्रोजन स्टूडेंट, O इज ऑक्सीजन, और यहाँ पे इसका फॉर्मूले के साथ ऐसे लिखा जाता है। यू विल लर्न दिस फार्मूला, हाउ दिस इज फार्मूला वी विल मेक दैट इन 9th क्लास। ओके, नाउ रिमेंबर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, अब जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होंगे, जब रेन होगी तो व्हाट विल हैपन? दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स व्हेन द रेन, देन इट इज़ मिक्सड इनटू द सॉइल एंड मेक नाइट्रेट्स। क्या बना लेंगे ये? नाइट्रेट्स। एंड दीज नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स से ये नाइट्रेट्स क्या होगा? बिकॉज अब नाइट्रोजन पहले क्या थी? नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में थी, अब नाइट्रोजन का क्या बन गया स्टूडेंट? कंपाउंड बन गया। नाउ दिस कंपाउंड इज इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न हाउ this is done. You will see in the next page. So नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हुआ स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस हो गया कन्वर्टिंग, पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन बता रही हूँ कि नॉट नाइट्रोजन साइकिल। व्हेन सो नाइट्रोजन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? फ्री नाइट्रोजन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर की जो फ्री नाइट्रोजन गैस है, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? किस में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। सो क्या बताया? द प्रोसेस तो अपने आप लिख सकते हैं, हम किसी डेफिनेशन को बनाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। या सिंपल मैं बोलूँ और इजीली, नाइट्रोजन को हम नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अंडरस्टूड? ना नाइट्रोजन साइकिल क्या है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन जो एयर में है उसको हमने नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रेट से प्लांट्स और इन सब ने एब्जॉर्ब कर लिया, देन अगेन फिर सॉइल के अंदर मिक्स हो गया, एंड देन अगेन इट इज सी दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट क्या हुआ इसमें कि इन्वायरमेंट में जो फ्री नाइट्रोजन थी इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके अगेन ये फ्री नाइट्रोजन फिर से इन्वायरमेंट में आ गई, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। ओके, लेट्स वी विल सी हाउ द नाइट्रोजन साइकिल टेक प्लेस। एक तो मैंने आपको बता दिया था नाइट्रोजन टेक्स प्लेस टू फॉर्म्स में हो सकती है, एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा क्या हो गया? बाय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सो एटमॉस्फेयर का हमने देखा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जब लाइटनिंग होगी देन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? से जब लाइटनिंग होगी
तब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बने थे स्टूडेंट्स, और वो कंपाउंड्स किस में आ गए थे, नाइट्रेट्स में। और नाइट्रेट से वापस इसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, इन कंपाउंड्स को, प्लांट्स ने। अब जब ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन थी, जब लाइटनिंग हुई स्टूडेंट्स, देन लाइटनिंग के दौरान क्या होगा, नाइट्रेट्स बन गए। क्या बन गए यहाँ पे, नाइट्रेट्स, NITRATES, नाइट्रेट्स बन गए। अब इसको हम बोलते थे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, ओके, इन द सॉइल के अंदर मिक्स हो गए। नाउ व्हेन दिस प्लांट्स अपटेक, प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो प्लांट को क्या मिल जाएगी, नाइट्रोजन मिल जाएगी, प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाएगी। सो उससे वो क्या बना लेंगे, प्रोटीन। प्लांट्स के अंदर क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, प्रोटीन, PROTEIN। प्लांट्स में क्या मिल जाएगी, प्लांट प्रोटीन बन जाएगी। ओके, जब ये प्लांट्स नाइट्रोजन को कंपाउंड्स के रूप में एब्जॉर्ब करेंगे तो प्लांट्स प्रोटीन मिलेगी, और प्लांट्स प्रोटीन भी मिलेगी, सेम एमिनो एसिड्स भी प्लांट्स के अंदर मिल जाएगी। एंड यू विल सी animals also require this animal amino acids and nucleic acid also, and protein is also, see, we need proteins also, amino acids also, and plants this proteins also we need, and this amino acids also we need, and nucleic acid। तो ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए। तो ये कैसे आ गई, कैसे मिली हमें, बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन के कंपाउंड से इन्होंने प्लांट्स ने ली, प्लांट्स से ये प्लांट प्रोटीन किस में आ गई, एनिमल्स अगर इसको खाएंगे, और प्लांट्स से नाइट्रेट्स को प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। प्लांट्स को कौन यूज़ कर रहा है बेटा, एनिमल्स ईट कर रहे हैं, और इसको एनिमल्स के प्रोडक्ट और प्लांट्स के प्रोडक्ट को कौन ईट कर रहे हैं, हम भी ईट कर रहे हैं। सो अब क्या होगा, जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड, अब जो प्लांट्स है, अगर प्लांट्स डेड हो गए तो वो क्या करेंगे, प्लांट्स डेड होते हैं स्टूडेंट्स, जब प्लांट्स यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये डेड होते जाएंगे, तो प्लांट्स डेड हो गए या एनिमल्स डेड हो गए तो उनके रिमेन्स, इनके पार्ट्स वहीं पे किस में रहेंगे, सॉइल के अंदर। सो वहाँ पे क्या है, सॉइल के अंदर प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू एमोनिया। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैं प्रोटीन का P ऐसे लिख रही हूँ शॉर्ट में, ओके, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एमोनिया, ओके, एमोनिया NH3, एमोनिया लिख दो, या एमोनियम। सो व्हेन द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स आर मिक्सड इनटू द सॉइल, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स डेड हो जाएंगे, इट मीन्स प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू एमोनिया और एमोनियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम एमोनिफिकेशन। अंडरस्टूड। नाउ यू विल सी आफ्टर एमोनिफिकेशन, अब सेम यहाँ पे भी क्या होगा, इसमें देखो, अब ये सारा कुछ किसके अंदर आ गया, वापस प्लांट्स का जो एमोनिफिकेशन होने के बाद ये नाइट्रेट्स यहाँ से ये वापस सॉइल के अंदर मिक्स हो गया। नाउ अगेन दिस इज यूज्ड बाय द प्लांट्स, एंड सम ऑफ दिस कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस बाय सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वापस इस नाइट्रेट्स कंपाउंड्स को नाइट्रोजन या गैसियस बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, बैक्टीरिया फिर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, जो इन्वायरमेंट के अंदर फ्री नाइट्रोजन थी, तो अगेन नाइट्रोजन आ गई। दिस इज बाय लाइक दिस वन। नाउ अब यहाँ पे देखो अगेन, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा स्टूडेंट्स बैक्टीरिया के थ्रू, ये तो हमने लाइटनिंग का देखा था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कौन फिक्स करेगा, नाइट्रोजन के बैक्टीरिया होते हैं, ओके, दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, या आप कह सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो फिक्स करती है, या यू कैन से राइजोबियम बैक्टीरिया ऑल्सो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को। कैसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड, कैसे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर फिक्स करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया with the help of rhizobium bacteria nitrogen is converted into nitrogenous compounds जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट्स। ओके, अगेन दिस इज absorbed by the plants, this nitrogenous compounds are uptaken by the plants and make plant protein। तो वहाँ पे क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, प्लांट प्रोटीन बन जाएगी। प्लांट प्रोटीन्स होगी, देन इसमें एमिनो एसिड्स
में ये ब्रेक हो जाती है। न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो, इससे हम प्लांट प्रोटीन बन जाएगी तो अमीनो एसिड्स भी बन जाएगी, न्यूक्लिक एसिड भी बन सकती है। नाउ इसको प्लांट्स को कौन ईट कर रहे हैं? एनिमल्स भी ईट कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स भी ईट कर रहे हैं, तो प्रोटीन्स उनको भी मिल गया। अगर अब ये एनिमल्स कोई भी वेस्ट रिमूव करेंगे तब भी वो, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स आए हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। और ये एनिमल्स और प्लांट्स डेड हो जाएंगे तब भी वहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स अगेन मिक्सड इनटू द सॉइल, फिर से सॉइल के अंदर मिक्स हो गए और फिर से ये कुछ इसका एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट्स। जितना आपको ये कंप्लीट मिट्टी में मिक्स होते जाएंगे प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब, एंड सम ऑफ दिस आर कन्वर्टेड इनटू फ्री नाइट्रोजन बाय सम बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया को बोलते हैं डाई NITRI नाइट्रीफाइंग FIING नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रीफिकेशन प्रोसेस। ओके, और इससे इन्वायरमेंट में अगेन हमें क्या मिल जाएगी? फ्री ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल इन्वायरमेंट में क्या रहती है स्टूडेंट्स? बैलेंस्ड। अंडरस्टूड? दिस इज़ अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। तो सेम यहाँ पे यही चीज़ बता रखी है इस टेबल में भी। सो नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स, डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो कौन इनको हेल्प करेगा? बैक्टीरिया और एल्गी। वो क्या करेंगे? इसको सॉइल के अंदर फिक्स करेंगे और उससे क्या बन जाएगा? ये कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स। अब यूजेबल कंपाउंड्स में नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गई, इट कैन बी यूटिलाइज। अब वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करेगा तो उसको कौन यूटिलाइज कर लेगा? प्लांट्स भी यूटिलाइज कर लेंगे फ्रॉम द सॉइल्स थ्रू रूट सिस्टम से। और नाइट्रोजन इज देन यूज बाय द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोटीन्स। अगर नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर पहुंच गया तो नाइट्रोजन से अदर क्या सब्सटेंस बन जाएंगे? प्रोटीन्स ऑल्सो। और these proteins are other nitrogen compounds get these proteins। अगर इनको एनिमल्स फीड करेंगे इन प्लांट्स को तो प्लांट्स को भी क्या मिल जाएगी? प्रोटीन्स मिल जाएगी। ठीक है। और जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब भी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई होंगे बेटा, देन अगेन दिस नाइट्रोजीनियस वेस्ट मिक्स इनटू द दिस नाइट्रोजीनियस वेस्ट, या कह सकते हो आप इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। सो इफ़ दिस प्लांट्स एंड एनिमल डाई, अगर प्लांट और एनिमल डाई हो जाएंगे तो व्हाट हैपन? बैक्टीरिया एंड फंजाई जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। किसको कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स? नाइट्रोजनियस वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और उसको कौन यूज़ कर लेगा? अगेन प्लांट। ठीक है। और यू विल सी सम बैक्टीरिया, you will see used by the plants. Certain other bacteria also convert some part of them into the nitrogen gas। और कुछ ऐसे अदर बैक्टीरियाज होते हैं जैसे मैंने बताया था डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। ओके, वो क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन कंपाउंड को अगेन इनटू फ्री नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर में हो जाता है। इस तरीके से नाइट्रोजन की साइकिल इन्वायरमेंट में क्या रहती है? ना ही ज़्यादा ना ही लेस, क्या रहती है? कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ी सी कांस्टेंट, मतलब थोड़ी कम ज़्यादा हल्का फुल्का चेंज हो सकता है बट रिमेन इन द इन्वायरमेंट एज इट इज़। नाउ दिस चैप्टर इज completed स्टूडेंट्स। you will do this all the keywords। okay, you will do all the keywords। these are some keywords here I am showing। एल्गी से लेकर यहाँ पे पैस्चराइजेशन तक दिख रहे हैं। ओके, देन यू विल सी some more keywords are here। all these keywords you have to do in your notebook also। then I will show you some question answer। this is the exercise। okay, do this exercise in your book। tick the correct answers tick correct MCQs you have to do in your notebook। okay, then you will see students match the columns also you have to do in your book also, and these question answer you have to do in your notebook। what are the question answer I am showing you here? all these 9 up to 9th question answer you have to complete in your notebook। understood? if any problem, this is the NCERT book I am following। okay students, if any problem in any question you can ask me। thank you students, and I hope you are continuously watching my videos and giving me the nice feedback also। thanks for this one।